السلام علیکم، سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ریحان طارق اور میں ہوں سیمل ہاشمی۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر، مگر اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ادھر چودھری نثار کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کا فیصلہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے پارٹی مشاورت کے بعد کل باضابطہ اعلان کریں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے میاں عامر محمود کے نام پر تاجروں سمیت شہریوں کی بھرپور حمایت۔ گورنر ہاؤس میں انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف میں مذاکرات۔ محمد بشارت راجہ نے کہا ہے کہ جب تک تحفظات دور نہیں ہوتے مزید پیش رفت نہیں ہو سکتی، جبکہ قمر زمان قاہرہ کا کہنا ہے کہ دونوں جماعتیں مل کر انتخابات میں حصہ لیں گی۔ آتش زدگی کے واقعات روکنے کے لیے ڈی جی ریسکیو کی سربراہی میں فائر سیفٹی کمیشن قائم۔ ہائی کورٹ کا بغیر نقشہ عمارتوں کا سروے کر کے 19 اپریل تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ ڈی سی او نورالامین مینگل کی شہر کے دیہی علاقوں کے اسکولوں کے کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت، جبکہ مال روڈ پر دلکش لاہور پروجیکٹ کے تحت تاریخی عمارتوں کی تزئین و آرائش کا کام جاری۔ شادی تقریبات میں اونچی آواز میں ڈیک لگانے کے قانون پر عمل درآمد نہ ہونے پر ڈی سی او، ڈی آئی جی اور دیگر افسران ہائی کورٹ میں پیش۔ قانون پر عمل درآمد نہ ہونے پر جسٹس منظور احمد ملک کا اظہار برہمی۔ داتا نگر انٹر گرلز کالج کی نئی عمارت طلبہ کے حوالے 6 ماہ قبل تعمیر ہونے والی عمارت میں نہ فرنیچر، نہ بجلی، نہ پانی موجود۔ لیگی رہنما حمزہ شہباز شریف نے وزیر تعلیم کے ہمراہ افتتاح کر دیا۔ ایل ڈی اے کا پرائیویٹ سکیموں میں آپریشن پی سی ایس آئی آر فیز 2 اور صاف کالونی میں 2 سکولوں کی اراضی واگزار، جبکہ جوہر ٹاؤن میں مکان سربمہر۔ چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ سید آصف ہاشمی نے دیال سنگھ مینشن میں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ٹرسٹ لائبریری کا افتتاح کر دیا۔ تھانہ ماڈل ٹاؤن میں سیکیورٹی گارڈ کی ہلاکت کا معاملہ، ایس ایچ او انچارج انویسٹیگیشن اور دیگر پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ تفتیشی رپورٹ کے مطابق شہادت علی کی موت خودکشی ہے، پولیس اہلکار ملوث نہیں۔ اشرا میں نقاب پوش خواتین نے جولر شاپ سے 9 لاکھ کے زیورات چوری کر لیے۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 42 نے حاصل کر لی۔ کسٹمز انٹیلیجنس کے چھاپے 2 مسافر بسوں، مزدہ گاڑیوں سے 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا اسمگل شدہ کپڑا، الائچی اور گوند کتیرہ کی کھیپ برآمد، 4 ملزمان گرفتار۔ کسی نگران عہدے کی امیدوار نہیں ہوں، ضروری نہیں کہ پورا ملک عدلیہ چلائے۔ آسمہ جہانگیر کے ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ ادھر ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں کہ مولوی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے، کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ 23 مارچ کو نئے پاکستان کا منشور دیں گے، ملک میں حقیقی جمہوریت لائیں گے، عمران خان کا نو منتخب عہدیداران سے خطاب۔ برطانیہ کی ہائی کمشنر ایڈم تھامسن کی وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف، مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں سید منور حسن اور لیاقت بلوچ سے الگ الگ ملاقات۔ پاک برطانیہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ معروف شاعر اور کالم نگار خالد احمد کی نماز جنازہ میں اہم شخصیات کی شرکت۔ ادھر مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی حاکم علی بھٹی مرحوم کے بڑے بھائی حاجی محمد لطیف بھٹی کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں سیرت نبی کنونشن، معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی۔ ٹاؤن ہال میں سول ڈیفنس کی جانب سے قومی ہیرو ایم اے عالم کی رحلت پر تعزیت اجتماع، شمع جلا کر قومی ہیرو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ رنگے
लाहौर के तहत खाना बदोशों की शनाख्त और सकाफत को उजागर करने के लिए बागे जनाह में जिप्सी मेले का इनेकाद। पुतली तमाशा और ऊंट की सवारी ने मेले की रौनक को दबाला कर दिया। मेजर जनरल शेर अली खान पिटौदी मरहूम की याद में फोर्ट्रेस स्टेडियम में खेला जाने वाला नुमाइशी पोलो मैच बराबर रहा। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मकसूद अहमद ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। शिबिस्तान सिनेमा में पंजाबी फिल्म भोला इश्तिहारी के फोटो सेट का इफ्तिताह हिदायतकार सैयद नूर ने आने वाली नई हुकूमत से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए 1 अरब रुपए का मुतालबा कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब बुलेटिन में खबरें तफसील के साथ। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली को कबल अज वक्त तहलील करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब आइंदा चंद घंटों में गवर्नर को बाकायदा समरी इरसाल कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में जमात का अहम मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चौधरी निसार अली खान, राना सनाउल्लाह, राना मशहूद अहमद खान, ख्वाजा साद रफीक, परवेज रशीद और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर अहम मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब असम्बली को आइंदा 24 घंटों में तहलील करने का फैसला किया गया है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद को कबल अज वक्त असम्बली तहलील करने की समरी जल्द भिजवाने जाने का इम्कान है। चौधरी निसार अली खान ने स्पीकर कौमी असम्बली को निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर गौर के लिए 4 रुकनी कमेटी के नाम अरसाल कर दिए हैं। साबिक अपोजिशन लीडर का कहना है कि कमेटी से भी फैसला होने की उम्मीद नहीं, निगरान वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन ही नामजद करेगा। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में पार्टी की मुशावरती इजलास के बाद कौमी असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर चौधरी निसार अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्होंने स्पीकर असम्बली को सरदार मेहताब खान, परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक और यकूब नासिर पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी के नाम अरसाल कर दिए हैं। ताहम लगता है कि निगरान वज़ीर आज़म का हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन को ही करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी निगरान हुकूमत की तश्कील पर सौदेबाजी करना चाहती है। चौधरी निसार अली खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क में बर वक्त आम इंतखाबात चाहती है, ताहम पंजाब असम्बली को तहलील करने का हतमी फैसला बुध को पार्टी के मरकजी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून समेत तमाम अपोजिशन जमातों का मुतालबा है कि सियासी गवर्नर्स को तब्दील किया जाए। साबिक ज़िला नाज़िम मियां आमिर महमूद के नाम को निगरान वज़ीर आला के तौर पर पेश किए जाने पर मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी के अफराद ने खुशाइंद करार दिया है, जबकि उनका यह भी कहना है कि मियां आमिर महमूद की तालीमी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि ये फैसला इंतहाई और इससे बेहतरीन फैसला नहीं हो सकता कि एक साहिब इल्म आदमी, ये मुहिब वतन पाकिस्तानी और हर किस्म की वाबस्तगी से बालातर, इससे खूबसूरत इंसान निगरान वज़ीर आला के लिए नहीं मिल सकता था। मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर ये एजुकेशन अपना चीफ मिनिस्टर को चंद दिनों के लिए भी बन गए तो ये पंजाब में जिस तरह इन्होंने एजुकेशन का जाल बिछाया, इस तरह ये तालीम का जाल पूरे पंजाब में सरकारी सरपरस्ती में ये बेहतरीन फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। बहुत अच्छा फैसला है। ही इज़ ए जेंटलमैन, जीनियस और उनकी बड़ी पूरे पाकिस्तान में पूरी खिदमत है। मियां आमिर साहब का जो नाम नॉमिनेट किया गया है निगरान वज़ीर आज़म के लिए, वो बहुत अच्छा मतलब कि नाम को चुना गया है पाकिस्तान के लिए, जो बहुत अहम शख्सियत को ढूंढा गया है। ये न्यूट्रल आदमी हैं, अगर ये बन जाएं तो ठीक है, सही बेहतर हो सकते हैं निगरान वज़ीर आला के तौर पर। ये मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी का इंतखाबी इत्तेहाद खतरे में पड़ गया। मोहम्मद बिशारत राजा ने कहा है कि जब तक तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते मज़ीद पेशरफ्त नहीं हो सकती, जबकि कमर ज़मान कायरा का कहना है कि दोनों जमातें मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोहम्मद बिशारत राजा की क़यादत में काफ लीग के वफ़द ने मुस्लिम लीग हाउस में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी की जानिब से मियां मंजूर भट्टू, कमर ज़मान कायरा, नज़र मोहम्मद गोंदल समेत दीगर अहम रहनुमा शरीक थे, जबकि काफ लीग के वफ़द में मोहम्मद बिशारत राजा के अलावा चौधरी ज़हीरुद्दीन, तारिक बशीर चीमा, रज़ा हिरात समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद बिशारत राजा ने कहा कि पीपल्स पार्टी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया है। जब तक तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते उस वक्त तक किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने आतिशज़दगी के वाक़यात पर काबू पाने के लिए डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर की सरबराही में 18 रुकनी फायर सेफ्टी कमीशन कायम कर दिया और कमीशन को बगैर नक्शा इमारतों का सर्वे करके 19 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है।
जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की अदालत में एडवोकेट मोहम्मद शैब सलीम की जानब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहर में कैम इमारतों में लगने वाली आग पर फौरी काबू पाने के लिए मुस्तर इक़दाम नहीं किए जाते। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर ने अदालत को बताया कि शहर में अक्सर इमारतें नक्शों के बगैर तमीर की गई हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू एहलकारों को आग पर फौरी काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि 2006 से अब तक शहर में आग लगने के 40,334 वाक़यात पेश आ चुके हैं। डॉक्टर रिजवान नसीर ने बताया कि शहर में औसतन रोजाना आग लगने के 13 वाक़यात रूनुमा होते हैं। अदालत ने फ्रीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद आतिशज़दगी के वाक़यात पर काबू पाने के हवाले से डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर की सरबराही में फायर सेफ्टी कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया। कमीशन के मेंबरान में एडवोकेट जनरल पंजाब, सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, सेक्रेटरी इंडस्ट्री, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी लेबर, सेक्रेटरी माहौलियात, CEO PUMS डॉक्टर नासिर जवेद, सदर फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान समेत 18 मेंबर्स शामिल हैं। अदालत ने कमीशन को शहर के बगैर नक्शा इमारतों का सर्वे और सिफारिशात तैयार करके 19 अप्रैल को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। DCO नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट रिव्यू कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। टाउन हॉल में DCO लाहौर की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इजलास में EDO वर्क्स चौधरी अशरफ गुज्जर, कायम मुकाम EDO फाइनेंस अफजाल अहमद, EDO स्कूल एजुकेशन परवेज अख्तर समेत DDOs और वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान ने शिरकत की। DCO लाहौर को तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि रवा साल 80% तरक्याती कामों को मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि 20% तरक्याती काम जारी हैं। नूरुल अमीन मेंगल ने हिदायत की कि बाकी कामों को भी तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जाए। उन्होंने हिदायत की कि देही इलाकों के स्कूलों के तरक्याती काम पहले मुकम्मल किए जाएँ और तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। हाई कोर्ट ने DCO, DIG और दीगर अफसरान को तलब करके शादी तकरीबात में ऊंची आवाज़ में डेक लगाने के कानून पर अमल दरामद न होने पर बरहमी का इजहार किया है। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने गुलबर्ग समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शादी की तकरीबात पर ऊंची आवाज़ में डेक चलाने पर DCO लाहौर नूरुल अमीन मेंगल, DIG ऑपरेशंस दाय ताहिर, SP ऑपरेशंस मॉडल टाउन अवैस मलिक, SP सिक्योरिटी अब्दुल गफ्फार कैसरानी, SP सिविल लाइन्स डॉक्टर फारूक रजा, TSP गुलबर्ग, TMO गुलबर्ग फैसल शहजाद समेत दीगर को तलब किया है। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने कानून पर अमल दरामद न होने पर अफसरान पर बरहमी का इजहार किया और उन्हें हिदायत की कि कानून पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सैयद आसिफ हाशमी ने माल रोड पर वाक़े दयाल सिंह मेंशन में बेनज़ीर भुट्टो शहीद ट्रस्ट लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। माल रोड पर वाक़े दयाल सिंह मेंशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सैयद आसिफ हाशमी ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद ट्रस्ट लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड चौधरी रियाज अहमद, सेक्रेटरी बोर्ड जुनेद अहमद, खालिद अली, खालिद बेग, अब्दुल वहीद खान और आसिफ रजा समेत पीपल्स पार्टी के कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ट्रस्ट लाइब्रेरी के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद आसिफ हाशमी ने कहा कि लाइब्रेरी को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया गया है। रंगे लाहौर 2013 के तहत खाना बदोशों की शनाख्त और सकाफत को उजागर करने के लिए बाग जना में जिप्सी मेले का इनेकाद किया गया। पुतली तमाशा और ऊंट की सवारी ने मेले की रौनक को दोबारा कर दिया। बाग जनाह में मुनक़िदा मेले का इनेकाद पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और गोद फाउंडेशन ने मुश्तरका तौर पर किया है। मेले में बच्चों के लिए पुतली तमाशा और ऊंट की सवारी का एहतमाम किया गया, जबकि खाना बदोशों के हाथ से बनाई गई अशिया के स्टॉल्स भी सजाए गए हैं। जिप्सी मेले में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और खाना बदोशों की सकाफत को उजागर करने के लिए किए गए इक़दामात को सराहा। मेले की ऑर्गेनाइजर और चेयरमैन गोद फाउंडेशन नसीमा मलिक ने कहा कि जिप्सी मेले के इनेकाद का मकसद लाहौरियों को खाना बदोशों की जिंदगी और कल्चर से आगाही देना है। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के ज़रिए तमाम सालाना कुतब मेले और फन फेयर का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने पंजाब की सकाफत को खूबसूरत अंदाज से उजागर किया। इस हवाले से देखते हैं तज़ीन मलिक की ये रिपोर्ट। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा किताब मेले और फन फेयर का इफ्तिताह सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नदीम ने किया। कॉलेज प्रिंसिपल अंजुम हबीब वोहरा, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद बशीर समेत दीगर फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद थे। सालाना फन फेयर में तलबा और तालिबात ने पंजाब के देहाती माहौल की अक्कासी करते हुए अपनी सकाफत को इंतहाई खूबसूरत अंदाज से उजागर किया। सेक्रेटरी सेहत आरिफ नदीम ने तलबा की काविशों को सराहते हुए कहा कि नौजवानों को अपनी सकाफत से रूशनास कराना बेहतरीन इक़दाम है। कॉलेज प्रिंसिपल का कहना था कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां मगरबी तहजीब की तकलीद में अपनी पहचान भुलाती जा रही हैं। तालिब इल्मों को इनकी सकाफत से रूशनास कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। मौसम बहार की वजह से एंड पंजाबी थीम अडॉप्ट करते हुए
अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज ने एक बुक फेयर का इनेकाद किया है। फन फेयर में किताबों के स्टॉल्स पर भी रश देखने को मिला, जबकि तलबा ने मुख्तलिफ स्टॉल से गोलगप्पे, शवारमा, बारबेक्यू, आइसक्रीम समेत दीगर अशिया से खूब लुत्फ उठाया। सबसे पहले तो पाकिस्तानी हैं, रहते पंजाब में हैं, तो हमें चाहिए कि अपने कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। तलबा ने फन फेयर जैसी तकरीब को जिंदगी का अनमोल हिस्सा करार देते हुए कहा कि साल भर की नसाबी सरगर्मियों के बाद न सिर्फ इन्हें तफरीही मौके मैसर आते हैं, बल्कि असातिज़ा के साथ गपशप का मौका भी मिल जाता है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ तजीन मलिक, सिटी 42। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां हमजा शहबाज शरीफ ने दाता नगर इंटर गर्ल्स कॉलेज की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। उनका कहना है कि शफाफ इंतखाबात का इन्हिसार गैर जानिबदार निगरान सेटअप पर है। दाता नगर इंटर गर्ल्स कॉलेज की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़ीर तालीम मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी तारिक गिल, साबिक MNA मलिक रियाज, डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर राना नसीम अख्तर, कॉलेज की प्रिंसिपल रुखसाना अफजाल, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर जफर अनायत समेत कॉलेज के फैकल्टी मेंबरान, तलबा और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने मेट्रो बस सर्विस और नए कॉलेजेस के क़याम समेत पंजाब भर में बेशुमार तरक्याती काम करवाए। नाज़रीन, यहाँ पर आपको अहम तरीन खबर से आगाह करेंगे। लेस्को ने टेक्सटाइल मिल्स को बिजली की फराहमी मुनक़ता कर दी है। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बताते चलें कि लेस्को ने टेक्सटाइल मिल्स को बिजली की फराहमी मुनक़ता कर दी है। जी, शायद सरप्राइज इस वक्त हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स जानेंगे। जी, शायद ये बताएगा कि लेस्को ने टेक्सटाइल मिल्स को जो बिजली की फराहमी मुअत्तल की है, ये इसकी क्या वजूहात बताई जा रही हैं? जी बिल्कुल, लेस्को की जानिब से टेक्सटाइल मिल्स को जो है बिजली की फराहमी मुअत्तल की गई। इसकी बुनियादी वजह यही है कि आज अगर शहर की बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही थी, तमाम जो ग्रिड्स हैं मुख्तलिफ औकात में 10 से 12 ग्रिड स्टेशन को 2 से 2.5 घंटे के लिए बंद किया जा रहा था ताकि घरेलू जो सार्फिन है उनको बिजली की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाया जाए। लेकिन अब हालात ये पैदा हो गए थे कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पास जो कोटा है वो काफ़ी हद तक कम हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन जो है अभी टेक्सटाइल मिल्स को जो है वो आर्जी तौर पर बिजली की फराहमी मुअत्तल की है। इस हवाले से हमें ज़राए ने यह बताया कि आला हुकाम की जानिब से 2 घंटे के लिए टेक्सटाइल मिल्स को बंद रखने के हुक्म जो है वो फरमाए गए ताकि जो घरेलू सार्फिन है उनको बिजली फराहम की जा सके। दूसरी जानिब मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से एप्टो रहनुमाओं ने कराची में एक मुलाकात की थी, जिसमें सदर ममलिकत ने ये अहकाम जारी किए थे कि टेक्सटाइल मिल्स को जो बिजली है वो 24 घंटे फराहम की। इसके बाद जी बहुत शुक्रिया शाहिद सिब्रा हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, शाहिद सिब्रा हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे कि क्या वजह है कि लेस्को ने टेक्सटाइल मिल्स को बिजली की फराहमी मुअत्तल करती है। दाता नगर इंटर गर्ल्स कॉलेज की नई इमारत का इफ्तिताह तो कर दिया गया है, ताहम यहाँ तालिबात के बैठने के लिए फर्नीचर, बिजली और पानी की बुनियादी सहूलत तक मैसर नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां हमजा शहबाज शरीफ ने दाता नगर इंटर गर्ल्स कॉलेज की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़ीर कानून मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, साबिक MNA मलिक रियाज समेत दीगर सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़ीर तालीम मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, साबिक MNA मलिक रियाज समेत दीगर सियासी शख्सियात ने शिरकत की। 6 महीने कबल तामीर होने वाली इस इमारत में 1 हफ्ते पहले तालिबात की क्लासेस और स्टाफ को मुंतकिल किया गया। ताहम इमारत में तालिबात के बैठने के लिए फर्नीचर तक मैसर नहीं है और ना ही हुकूमत की जानिब से कॉलेज को बिजली और पानी फराहम करने का बंदोबस्त किया गया है। मारूफ शायर और कॉलम निगार खालिद अहमद की नमाज जनाजा जौहर टाउन G3 के ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में अहम शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मारूफ शायर और कॉलम नवीस खालिद अहमद की नमाज जनाजा जौहर टाउन J3 ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा कारी अता मोहम्मद ने पढ़ाई। सीनियर सहाफ़ी मजीद निज़ामी, कॉलम निगार अताउल हक कासमी, अजमल न्याजी, अमजद इस्लाम अमजद, सज्जाद मीर, शुएब बिन अजीज़, अदाकार सुहेल अहमद, दानिश्वरों, सहाफ़ियों और अहले इलाका की कसीर तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। टाउन हॉल में सिविल डिफेंस की जानिब से कौमी हीरो मोहम्मद महमूद आलम की रहलत पर ताज़ियती इज्तिमा का अहतमाम किया गया, जिसमें DCO लाहौर नूरुल अमीन महगिल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तंजीम शहरी रिफा की जानिब से शम्मे जलाकर कौमी हीरो को खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर शकूर आलम जैदी, राव अमीन, मोहम्मद इलियास खान, इजाज अहमद, वसीम यासीन, नसीर अहमद और रज़ाकारों समेत आम अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की।
DCO نے तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मोहम्मद महमूद आलम की खिदमात को कभी नहीं भूला जा सकता। उन्होंने कहा कि MM आलम जैसे हीरो की बदौलत आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि MM आलम का ताल्लुक बंगाल से था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद किया। इस मौका पर शुरका ने MM आलम के लिए दुआए मग़फ़िरत की और मरहूम की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। तंजीम शहरी दिफा के रज़ाकार ख़वातीन की जानिब से उनकी याद में शम्में भी रोशन की गईं। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। खेल के मैदान में कौन जीता और किसने खाई मात, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन इदरीस हैदर ख्वाजा ग्रुप ने आइंदा माह लाहौर में नेशनल गर्ल्स और जूनियर गर्ल्स साइकिलिंग चैंपियनशिप मुनक्किद कराने का ऐलान किया है। टेम्पल रोड पर वाक़ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इदरीस हैदर ख्वाजा ने बताया कि मुनव्वर बसीर ग्रुप का UCI और एशिया से मुंसलिक होना बदकिस्मती है। हमारे कई अच्छे खिलाड़ी भारत जाने से महरूम रह गए। उन्होंने मजीद कहा कि वो ECL में नाम शामिल होने के बावजूद मुनव्वर बसीर के भारत जाने के खिलाफ बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि उनका ग्रुप अगले माह लाहौर में नेशनल गर्ल्स और जूनियर गर्ल्स साइकिलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद करने लगा है। LDA टाउन प्लानिंग विंग ने IT विंग को हराकर LDA क्रिकेट कप अपने नाम कर लिया है। LDA के अफसरान और मुलाजमीन पर मुश्तमिल 5 टीमों के माबैन LDA कप जलानी पाक गौसल आजम रोड ग्राउंड में खेला गया। LDA क्रिकेट कप में टाउन प्लानिंग विंग, इंजीनियरिंग विंग, IT विंग, एडमिन विंग और वन विंडो सेल की टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में पहले बैटिंग करते हुए LDA टाउन प्लानिंग विंग ने IT विंग को 56 रन का टारगेट दिया, जिसे IT विंग की टीम हासिल करने में नाकाम रही। LDA कप में एडिशनल DG हाउसिंग मोहम्मद उस्मान, डायरेक्टर ख्वाजा तौकीर, मौज़म रशीद, राना उस्मान, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, आयशा नज़ीर, मुजाहिर ऐवान, अली नुसरत, हसीब इफ्तिखार, ज़िशान हुसैन, ज़िशान सुहेल, शुजात मुनीर समेत अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एडिशनल DG हाउसिंग LDA मोहम्मद उस्मान ने फातेह टीम को विनिंग ट्रॉफी दी। किनेट क्लब ने रावी क्लब को 110 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बागी जनाब क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में किनेट क्लब ने पहले खेलते हुए 200 रन का मजमुआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। बिस्मा मारूफ 62, सिदरा अमीन 40 और इरम जावेद 24 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। रावी क्लब की जानिब से बख्तावर इकबाल 3, फरियाल आवान और हिफ्सा अमजद 2-2 विकेटें लेने में कामयाब हुई। जवाब में रावी क्लब की टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों पर 90 रन बनाए। हिफ्सा अमजद और आयशा नाज ने 18-18 रन बनाए। फातेह टीम की जानिब से सना मीर ने 4, बिस्मा मारूफ और इरम जावेद ने 1-1 विकेट हासिल की। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में ऑपरेशन करते हुए कब्जा माफिया से 2 स्कूल साइट्स वागुजार करवा ली और सरकारी प्लॉट पर गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाला घर सील कर दिया। LDA के शोबा स्टेट मैनेजमेंट ने स्टेट ऑफिसर असदुल्ला चीमा की ज़ेर निगरानी जौहर टाउन में वाक़े प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में ऑपरेशन किया। इस दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। LDA ने PCSIR फेज 2 में स्कूल के लिए मुख्तस 5 कैनाल का प्लॉट कब्जा माफिया से वागुजार करा लिया है, जबकि PCSIR स्टाफ कॉलोनी में भी 5 कैनाल की स्कूल साइट पर तामीर की गई 4 दीवारी मिसमार कर दी है। LDA ने 141H1 जौहर टाउन में 5 मरले के सरकारी प्लॉट पर गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाले घर को भी खाली करा के सरबमोहर कर दिया है। कस्टम इंटेलिजेंस ने छापा मारकर 2 मुसाफिर बसों और 2 मजदा गाड़ियों से 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत के स्मगलशुदा कपड़े, इलायची और गोंद कतीरा की खेप बरामद करके 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने डायरेक्टर सुमेरा नज़ीर खान की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए फैसलाबाद से आने वाली मुसाफिर कोच को तहवील में लेकर 28,536 गज, जबकि पेशावर से आने वाली मुसाफिर बस से 16,997 गज स्मगलशुदा कपड़ा कब्जे में ले लिया। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने दोनों बसों के ड्राइवर्स मोहम्मद जाहिर शाह, संगीन खान और क्लीनर्स अनवर शाह, इमरान खान को गिरफ्तार करके ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीरत-उन-नबी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। मौलाना तारिक जमील ने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की बदौलत दुनिया से जहालत के अंधेरे छट गए। अल्लाह ने जिस तरह अंधेरा दूर करने के लिए सूरज पैदा किया, उसी तरह दिल का अंधेरा दूर करने के लिए कुरान और हदीस की सूरत में 2 नूर पैदा किए। इंसान के अशरफुल मखलूकात होने पर रोशनी डालते हुए मौलाना तारिक जमील ने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसानों को शऊर से नवाजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों को बराबर करार दिया और फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक बेहतर इंसान वो है जो ज़्यादा परहेजगार है।
انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ پیسہ کمانے کے چکر میں دینی تعلیمات سے دور نہ ہوں۔ بلیٹن میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ ڈی آئی جی آپریشنز رائے طاہر نے کہا ہے کہ تمام عدالتوں، اہم شخصیات، اہم عمارتوں اور 10 سے زائد حساس رہائشی آبادیوں کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ ہر عدالت کی چھت پر بھی 2 مسلح جوان تعینات کیے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز رائے طاہر نے پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں ڈویژنل ایس پی سے میٹنگ کی۔ میٹنگ میں ایس پی سیکیورٹی عبدالغفار کیسرانی، ایس پی مجاہد فورس رومیل اکرم اور ایس پی ہیڈ کوارٹر حسن سکھیرا بھی موجود تھے۔ ڈی آئی جی نے کہا کہ شہر میں بھی فرقہ وارانہ دہشت گردی کے خطرات موجود ہیں، جس کے پیش نظر پولیس نے اہم عمارات سمیت 60 سے زائد اہم شخصیات اور 10 کالونیوں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی ہے۔ رہائشی کالونیوں کے باہر ناکہ بندی کر کے تھانوں کی گاڑیوں کو مسلسل پیٹرولنگ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جوڈیشل کمپلیکسز ہیں، ہائی کورٹ سے لے کے لوور کورٹس تک، ان سب کی سیکیورٹی ریویو کی ہے، اور جہاں جہاں ہمیں کوئی خامی یا کمی نظر آئی ہے اس کو میں نے بیف اپ کروایا ہے، اور یہ ہدایت کی ایس پیز کو کہ پرسنلی ابھی جا کے ریویو کریں، اور جہاں جہاں ہمیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے اس کو پورا کریں۔ اس کے علاوہ جو ججز کے اندر کوئی ایسی پرسنالٹیز ہیں جن کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، ان کی سیکیورٹی ہم ریویو کر رہے ہیں۔ گلشن راوی کے علاقے بند روڈ پر پولیس مقابلے میں ایک اشتہاری مارا گیا، جبکہ مصطفیٰ کو 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن رائے طاہر کے مطابق سی آئی اے کوتوالی پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ قتل سمیت دیگر وارداتوں کی مقدمات میں اشتہاری ملزم مصطفیٰ نے بند روڈ کے علاقے سے گزرنا ہے، جس پر پولیس پہلے ہی سے وہاں پر موجود تھی۔ اشتہاری مصطفیٰ سفید رنگ کی ہونڈا سویگ گاڑی میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بند روڈ پر واقع پی ایس او پیٹرول پمپ پر پہنچا اور اس نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں پولیس اہلکار اسد شاہ زخمی ہو گیا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک اشتہاری ہلاک ہو گیا، جبکہ مصطفیٰ کو 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ ماڈل ٹاؤن میں 1 ماہ قبل سیکیورٹی گارڈ کی ہلاکت کا ایس ایچ او انچارج انویسٹیگیشن اور دیگر پولیس اہلکاروں کے خلاف درج مقدمہ خارج کر دیا گیا۔ تفتیشی رپورٹ کے مطابق شہادت علی کی موت خودکشی کے باعث ہوئی ہے۔ ہلاکت میں کوئی پولیس اہلکار ملوث نہیں تھا۔ تھانہ ماڈل ٹاؤن کے واش روم میں 40 سالہ سیکیورٹی گارڈ شہادت علی نے سر میں گولی مار کر مبینہ طور پر خودکشی کر لی تھی، جس کا مقدمہ تھانہ ماڈل ٹاؤن میں ایس ایچ او عبداللہ جان، انچارج انویسٹیگیشن احسان ہاشمی، سب انسپیکٹر امانت اور 3 پولیس اہلکاروں کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ شہادت علی نے واش روم میں جا کر خود کو گولی مار کر خودکشی کی۔ اس واقعے میں کوئی پولیس اہلکار ملوث نہیں پایا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق شہادت علی کی ہلاکت موقع پر ہی ہو گئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون 23 مارچ کے جلسے کے ڈر سے پنجاب حکومت چھوڑنے کو تیار نہیں۔ عمران خان مال روڈ آفس میں پارٹی کے نومنتخب عہدیداران سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کبھی بھی حقیقی جمہوریت نہیں آئی، پی ٹی آئی عوام کو نیا پاکستان دے گی۔ انہوں نے 23 مارچ کے جلسے میں نیا منشور دینے کا اعلان کیا۔ عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف ملک میں موروثی سیاست کا خاتمہ کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے پارٹی الیکشن کرا کر نئی مثال قائم کر دی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پنجاب حکومت 23 مارچ کے جلسے کے ڈر سے حکومت چھوڑنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 23 مارچ کا جلسہ عوام کی تقدیر بدل دے گا۔ تحریک منہاج القرآن کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے ملک میں 35 صوبے بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فرسودہ نظام کے خلاف پولنگ سٹیشنز کے باہر پرامن احتجاج کریں گے۔ ماڈل ٹاؤن میں منہاج القرآن سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ پولنگ ڈے پر ان کے پرامن احتجاج کے بیان کو غلط رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے موجودہ نظام پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس فرسودہ نظام کے خلاف ہیں۔ نگران حکومت کا نظام دنیا بھر میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں 15 جبکہ ہمارے ہاں 95 وزیر ہیں۔ وفاقی اور صوبائی وزراء نااہل لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سیاسی فرسودہ نظام کو گرانا چاہتے ہیں۔ وہ ان انتخابات کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے ورکرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے مزید کہا کہ ملک میں ہر ڈویژن کو صوبہ بنا کر کمشنر کے لیے مختص بجٹ گورنر کے حوالے کر دیا جائے، جس کا کام صرف کوارڈینیشن ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف سے برطانیہ کی ہائی کمشنر ایڈم تھامسن نے ملاقات کی، جس میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ اور پاک برطانیہ تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی ہائی کمشنر ایڈم تھامسن سے ملاقات کے دوران میاں محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان اقتصادی، تجارتی، صنعتی اور دیگر شعبوں میں تعاون مزید بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتے ہیں۔ پاکستان میں ہونے والے انتخابات حکومتیں بدلنے کے لیے نہیں بلکہ ملک کی بقا کے لیے ہیں۔ امید ہے کہ عوام مخلص اور دیانتدار قیادت کو چنیں گے۔ ایڈم تھامسن نے کہا کہ برطانیہ پاکستان سے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔
पंजाब के साथ तालीम समेत दीगर शोबों में ताउन जारी रखेंगे। एडम थॉम्सन की सरबराही में वफ्द ने जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन और सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच से भी मुलाकात की। सैयद मुनव्वर हसन का कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, सिर्फ अवाम के वोट का सही इस्तेमाल ही मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकाल सकता है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से भी बरतानवी हाई कमिश्नर एडम थॉम्सन ने मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ की बदौलत पहली बार इक़्तिदार जमहूरियत अंदाज से मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान में पहली बार जमहूरियत की जड़ें मजबूत हो रही हैं। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर एडम थॉम्सन का कहना था कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में अल्लामा इकबाल का तसव्वुर इस्लामी रियासत के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने खुसूसी लेक्चर दिया। उनका कहना था कि मुफक्किर पाकिस्तान ने इज्तिहाद की बुनियाद पर इस्लामी रियासत का तसव्वुर पेश किया। इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में मुनक़िदा सेमिनार में कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अमजद अली शाकिर समेत असातिज़ा कराम और तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। अल्लामा इकबाल का तसव्वुर इस्लामी रियासत के मौजू पर लेक्चर देते हुए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने जमहूरियत की हमेशा हमायत की है। वो सिर्फ जमहूरियत में मौजूद खामियों को अपनी तनकीद का निशाना बनाते रहे। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। अदालती कार्रवाइयों पर नजर डालेंगे सिटी अदालत में। सुप्रीम कोर्ट बार की साबिक सदर आसमा जहांगीर ने कहा है कि वो किसी निगरान ओहदे की उम्मीदवार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसमा जहांगीर का कहना था कि निगरान सेटअप के लिए उनके नाम पर एतमाद के लिए वो दोनों सियासी जमातों की मशहूर हैं, लेकिन वो किसी हुकूमती ओहदे की ख्वाहिशमंद नहीं हैं। उनका कहना था कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक ना हो उस वक्त तक किसी को निगरान सेटअप पे नहीं आना चाहिए। मुल्क इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, गैर जानिबदार होकर फैसले करने की ज़रूरत है। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार का मजीद कहना था कि बरवक्त और शफाफ इंतखाबात के लिए ज़रूरी है कि उन कुव्वतों से बचा जाए जो जमहूरियत को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। तालीमी सरगर्मियों पर एक नज़र सिटी तालीम में। गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उमर सुहेल ज़िया भट्ट ने तालिबात को डेंगू वायरस के हवाले से आगाही दी। मॉडल टाउन में मुनाकिदा डेंगू सेमिनार से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उमर सुहेल ज़िया भट्ट ने कहा कि हम सबको मिलकर गुज़श्ता बरस की तरह डेंगू को शिकस्त देना होगी। अपने घर और मोहल्ले को साफ रखें, गैर ज़रूरी पानी जमा ना होने दें। उन्होंने कहा कि आवाम की खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का असल मकसद है। प्रिंसिपल रिफत सुहेल, आसमा कामरान, तनवीर बुखारी, सैयद तनवीरुल हक, मसूद अहमद और तालिबात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। MPA चौधरी शहबाज और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की टीम ने नौलखा टायर मार्केट में डेंगू से बचाव के हवाले से ताजरों की तरफ से किए गए इक़दाम का जायज़ा लिया। दौरे के मौके पर टायरों के गोदामों में डेंगू लार्वे की अफजाइश की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दाम का जायज़ा लिया गया, जबकि डेंगू की रोकथाम के लिए इक़दाम को हतमी शक्ल देने के लिए जुमेरात को इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया गया। सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौल शेर आलम महसूद ने कहा कि टायर मार्केटों में डेंगू से बचाव के लिए ज़ाब्ते मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद करवाया जाएगा। रुकन पंजाब असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पंजाब यूनिवर्सिटी के 400 असातिज़ा में लैपटॉप तकसीम कर दिए। लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में कायम मुकाम वाइस चांसलर लियाकत अली, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर मंसूर सरवर समेत एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। लैपटॉप हासिल करने वालों में 479 प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और लेक्चरार शामिल हैं। कायम मुकाम वाइस चांसलर लियाकत अली ने लैपटॉप हासिल करने वाले असातिज़ा को मुबारकबाद दी। शहर के कारोबारी उतार चढ़ाव पर एक नजर डालेंगे सिटी बिजनेस में। मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग के मरकजी सदर बाबर महमूद ने हाल रोड पर ब्राइन टेलीकम्युनिकेशन का इफ्तिताह कर दिया है। हाल रोड पर मुनाकिद होने वाली तकरीब में ताजिर रहनुमाओं बाबर अली खान, मौज़म अली खान, मजहर अमीन भट्ट, इमरान बशीर, शेख आबिद, मियाँ जमील, मोहम्मद अली खान, जनरल मैनेजर ब्राइन नेट लतीफ़ खालिद, आसिम खान, एहसान खान, अमजद फारूक समेत दीगर ने शिरकत की। उन्होंने ब्राइन टेलीकम्युनिकेशन की जानिब से फ्राहम की जाने वाली वाईफाई, इंटरनेट और टेलीफोन की सहूलत को मायारी करार देते हुए टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया इजाफा करार दिया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद अली मियाँ की ज़ेर सदारत मुनाकिदा इजलास में सूबाई दारुल हुकूमत की मुख्तलिफ मार्केटों के नुमाइंदों में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। इजलास में को चेयरमैन मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग नासिर सईद, जनरल सेक्रेटरी कामरान सलीम, आबिद मुश्ताक, मियाँ शफकत समेत दीगर ताजरों ने शिरकत की। शाहिद नज़ीर को वाइस चेयरमैन और शेख एजाज
شاہد اکرم مختوم ممتاز اعظم گھرکی کو مختلف مارکیٹوں کے بطور نائب صدر کے نوٹیفیکیشن دیے، جبکہ رانا کاشف کو جوائنٹ سیکرٹری کی تقرری کا نوٹیفیکیشن دیا گیا۔ گلبرگ تاجر بورڈ کے سرپرست اعلیٰ فاروق حسن کرمانی کی زیر صدارت لبرٹی مارکیٹ میں تاجروں کا اہم اجلاس ہوا، جس میں تاجر برادری کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ اجلاس میں مختلف مارکیٹوں کے تاجر رہنماؤں میاں زاہد جاوید، یاسین خان، یونس بیگ، حاجی منیر، میاں اسلم، فیاض بٹ، اظہر شاہ، ظہور الحق، ملک عامر، مہر ارشد اور قابل خان سمیت دیگر تاجروں نے شرکت کی۔ تاجر رہنماؤں نے کہا کہ انتخابات میں تاجروں کو بھی نمائندگی دی جائے۔ اجلاس میں شریک تاجروں نے مسلم لیگ نون ٹریڈرز ونگ کے چیئرمین سہیل سرفراز منچ کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایکسپو سینٹر میں 20 سے 22 مارچ انٹرنیشنل سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نمائش انٹرسیف 2013 کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں پاکستان سمیت دیگر ممالک کی 160 کمپنیاں شرکت کریں گی۔ میسی انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر تصور حسین نے اس حوالے سے بریفنگ کے لیے لاہور پریس کلب میں نیوز کانفرنس منعقد کی، جس میں ریسکیو 1122 کے ڈاکٹر احمد رضا، نعیم زرار، سردار شوکت، عبدالحمید شیخ اور باسط حسین کے علاوہ دیگر افراد نے شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تصور حسین نے کہا کہ انٹرنیشنل سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ایگزیبیشن میں 15 ممالک کے 160 کمپنیز اپنے جدید آلات کو متعارف کروائیں گی، جبکہ نمائش میں آنے والے افراد کو کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹریننگ دینے کے لیے خصوصی سیشنز کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ اور اب ایک نظر فوریکس ریٹس پر۔ انٹرٹینمنٹ کی رنگا رنگ دنیا سے کچھ خبریں شامل کریں گے سٹی انٹرٹینمنٹ میں۔ شبستان سینما میں پنجابی فلم بھولا اشتہاری کے فوٹو سیٹ کا افتتاح ہدایتکار سید نور نے کیا۔ سید نور نے آنے والی نئی حکومت سے پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے 1 ارب روپے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ایبرٹ روڈ پر واقع شبستان سینما میں پنجابی فلم بھولا اشتہاری کے فوٹو سیٹ کا افتتاح فلم انڈسٹری کے ہدایتکار سید نور نے کیا۔ اس موقع پر صفدر خان، چودھری کامران، کیسر ثناء اللہ، ملک جونی، فیاض خان، شیخ اکرم اور شاہد صدیق سمیت فلم انڈسٹری سے وابستہ دیگر افراد بھی موجود تھے۔ فلم بھولا اشتہاری کی کاسٹ میں شان، سائمہ اور شفقت چیمہ شامل ہیں۔ سید نور کا کہنا تھا کہ پاکستان فلم انڈسٹری کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے 1 ارب روپے درکار ہیں، اور ہم آنے والی نئی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان فلم انڈسٹری کو 1 ارب روپے دے تاکہ ہم ان سے نئے کیمرے اور ٹیکنالوجی خرید سکیں اور اپنی فلموں کا معیار بہتر بنا سکیں۔ مال روڈ پر واقع الفلاح تھیٹر میں امانت چند، افتخار ٹھاکر اور ظفری خان سمیت میگا کاسٹ پر مشتمل نئے سٹیج ڈرامے لال لال گال کی نمائش کا آغاز ہو گیا ہے۔ 16 روزہ ڈرامے کی کاسٹ میں آصف اقبال، سردار کمال، عابد چارلی، طاہر نوشاد، ثنا بٹ، کومل ناز، ماہنور اور مدیحہ شاہ بھی شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی 2 خاندانوں کے گرد گھومتی ہے جو علاقے میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اداکارہ مدیحہ شاہ اس ڈرامے کے ذریعے 6 ماہ کے وقفے کے بعد تھیٹر کی دنیا میں واپس آئی ہیں۔ ڈرامے کے ہدایتکار آصف اقبال، مصنف راحیل شاہ وارثی ہیں۔ پروڈیوسر ارشد چودھری کا کہنا ہے کہ وہ الفلاح کی روایت کے مطابق موضوعاتی اور ثقافتی ڈرامے پیش کرتے ہیں، جن سے شائقین نہ صرف محظوظ ہوتے ہیں بلکہ وہ ان کی اصلاح کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ڈرامے میں مزاح کے ساتھ اداکاراؤں کی میوزیکل پرفارمنسز بھی شامل ہیں، جن میں اداکارہ ماہنور کا 12 ڈانسر لڑکوں کے ساتھ کلاسیکل، نیم کلاسیکل اور پاپ موسیقی پر مبنی ایک ڈانس آئٹم بھی شامل ہے۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی سب باتیں۔